Okay, so let me first of all recall. We have been discussing uniform continuity. Okay, uniform continuity, and we have almost revised, seen various results, how to check whether a given function on some interval is uniformly continuous or not. So its definition, if you recall that, suppose J is any subset of R, and so as a function f from J to R is uniformly continuous, on the interval J if for each epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that whenever x1 x2 belongs to J, x1 x2 are arbitrary, I mean with x1 close to x2, that is with x1 minus x2 less than delta, then this implies that f of x1, this estimate f of x1 minus f of x2 is less than epsilon. Or in short, one can say that whenever x1 is close to x2, this implies that fx1 is close to fx2. So we have seen various results. Let me recall all those results first, and then I will discuss various questions today. Already I have. So we have seen that, say a result that if f and g are uniformly continuous, then if yes, what is this result? Let me quickly recall. See, if f and g are uniformly continuous and bounded, then we have seen that this implies that f dot g is uniformly continuous. Is it? This boundedness is must in this result. If f and g are uniformly continuous and bounded, then f and g, then f dot g must be uniformly continuous. So because there may, if we drop this boundedness condition, it may happens that even if f and g are uniformly continuous, then f in g may not be uniformly continuous. Can you give me an example? Yes, I want involvement of everyone. कुछ examples बताएं आप लोग. कोई ऐसा फंक्शन जहां पे ये बाउंडेडनेस अगर मैं ड्रॉप कर दे तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. यस, अब्दुल कादिर, इजाज, इल्हाम, बताएं ऐसा फंक्शन. इफ आई ड्रॉप दिस कंडीशन, देन this boundedness is must. I mean, look here, what I'm trying to say, that if f and g are uniformly continuous, this may not imply that f into g is uniformly continuous. So can you give me an example? See, fx equal to x. If let us take fx and gx both has x, and both are uniformly continuous on R. Why? Because its derivative is bounded, uniformly continuous on R. Why? Yes, anyone? You can use this result, derivative bounded. Fx, derivative of fx and gx is 1. So clearly, if derivative of any function is bounded, then it is uniformly continuous on this one. I have not told you this, that limit concept, but still, and also I have shown this by definition. See, if x1 is close to x2, then obviously here this is implying that f of x1 will be close to f of x2. So this will always hold for this function f into g. I mean, then f into g
and here you can write f into g. This is close to f into g of x1 is going to be close to f of g into x2. Why? Because, but you can see that x into x is equal to x square is not uniformly continuous, not uniformly continuous on R. I have already proved this using sequential approach. That why? Because y equal to x square, y is equal to x square, and if you are moving here, then you can see that the vertical difference start increasing. If you choose x1 very close to x2, x1 very close to x2, but what will happen that this will start increasing, f of x1 minus f of x2 will tends to infinity. Is this is going to tends to infinity. This is the reason why, but here both fx and gx are continuous, sorry, uniformly continuous, but their product x square is not uniformly continuous, and you can see that x square is not bound. These functions are not bounded. So even so, this boundedness is must, because I have here discussed this counter example that if that not only this that f and g should be uniformly continuous. If we are talking in general, then f and apart from this condition that f and g are uniformly continuous, it must be bounded, because this one is a counter example. ठीक है ना, तो ये काउंटर एग्जांपल है. अब देखो, ठीक है, इसको अगले उसमें देखते हैं. अच्छा, एक काम करता हूँ, जैसे ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ कंडीशंस, लेकिन ये जब मैं डिस्कशन करूंगा ना सेकंड कंडीशन, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन में रिकॉल करा दूं ताकि, तो ये हम लोगों ने देख लिया था. एंड व्हाट अबाउट दिस, if f and g are uniformly continuous, this implies their composition is uniformly continuous. ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने रिजल्ट कर लिया था. मैं यहाँ पे जस्ट एक आपको रिकॉल करा रहा हूँ, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. थर्ड रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, okay, if derivative of a function is bounded, see, if dash of x is less than equal to some constant m, I mean bounded, then this implies uniformly continuous. This implies uniformly continuous. So derivative bounded, but converse need not be true. Here try to understand that derivative, if derivative is bounded, I mean function should be continuous, but derivative is bounded, then function will be uniformly continuous. तो function क्या होगा? Uniformly continuous. But if derivative is not bounded, but if derivative is not bounded, then we can't say anything. We can't say about uniform continuity. Apply other test. Apply. I mean, it may be uniform continuous. It may be not be uniform continuous. But this is sure. If your derivative is bounded, then function will be always uniformly continuous. But it may happen that if derivative is not bounded, then even again it can be uniformly continuous. So we can't interpret from here. We need to apply some other test. We need to apply some other test. किसी कोई डाउट तो नहीं है? कोई ऐसा बताएं? नहीं सर, ठीक है. ठीक है. क्लियर सर. फोर्थ कंडीशन, कंटिन्यूअस, और हमने क्या रिजल्ट किया था? कंटिन्यूअस प्लस periodic. If function is continuous on the given domain and periodic, then it will imply uniform continuity. ठीक है, uniform continuity. And similarly, there are other results like this, that if f from say AB to R is continuous, then f is uniformly continuous if and only if limit x tending to a plus f of x and limit x tending to b minus
f of x exists finitely. This one is also a very good result, that if on any open interval, if function, your given function is continuous, and just check its limit at the end point. If its limit at end point exists finitely, then function will be uniform continuous. So a and b must be finite, and if at the end it is infinity, then we can't, I mean, then in that case what will happen, that if limit exists, then we will say that function is uniformly continuous. But if limit does not exist at the end point, then in that case we have to apply some other test. I mean, we cannot interpret from here. ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझा? मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ. What I'm trying to say is that, see, you can check here that there are examples. Okay, so here a and b is finite, so we can say here that, let me try to explain it with the help of examples. So these are some of the important results, and let us do it by one. Based on this, let me do some questions on this one. ठीक है ना? तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. चलिए मैं एक-एक करके कुछ सवाल करता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको. लेकिन इस पे आने से पहले कुछ फंक्शंस के ग्राफ के बारे में मैं बात करूं तो वेट करेंगे, और फंक्शंस के आपको बेसिक बता दूं. Check whether fx equal to sin 1 by x is uniformly continuous on 0, 1. देखो यहाँ पे ना, ये जो है ये रिजल्ट फाइनाइट इंटरवल के लिए है. फाइनाइट इंटरवल, तो फाइनाइट इंटरवल पे क्या होता है कि दोनों साइडेड ट्रू है. आई मीन, इफ दिस इंटरवल इज योर फाइनाइट एंड यू जस्ट नीड टू चेक द लिमिट at end points a and b, and if they exist finitely, then the function will be uniformly continuous. So this condition is if and only if. But if this condition, if your domain is not finite, then in that case, if limit exists finitely, then it will be uniformly continuous. But if limit is not existing finitely, then it may or may not be uniformly continuous. So let me write that result here, and then we will do questions based on this one. Try to understand this. I mean, say if f from, say, any interval j, I mean, you can take here any open interval, so any open interval to r. So suppose continuous function, suppose continuous, and limit, say, open interval, you can call, I mean, it can be of the type, say, alpha to infinity. It can be of the type minus infinity to beta, or it can be of the type, say, minus infinity to infinity. I mean, this type is continuous, and limit extending to this, extending to alpha plus, limit extending to alpha plus fx exist finitely. I mean, at both, you need to check limit at both, at infinity. Suppose this one is given to you. Suppose limit at both endpoints.
So you can including infinity. So let me write here. These two are very important results. So without writing the results, I can't explain these facts. So okay. So if f is any continuous function from open interval to R and limit at both endpoints and limit at both endpoints exist finitely, then fx is uniformly continuous. Then fx is uniformly continuous. So, but if limit does not exist finitely, then we can't say anything. I mean, it can be continuous, it can be. But note here, if you can say if limit does not exist finitely, apply other test. I mean, it may or may not be uniformly continuous. It may or may not be uniformly continuous. So to explain this, let me take, so on an unbounded interval, you can say that on an unbounded interval, provided it is open, if limit exists at both endpoints, then directly you can say, interpret from here that function is uniformly continuous. But if limit does not exist finitely, then apply other test. It may or may not be uniformly continuous. So to explain this, let me take this example. See here, this interval is open. This interval is open. So just you need to check limit extending to 0 plus sine 1 by x and limit extending to 1 minus sine 1 by x. So can you tell me what is the first limit? Sine 1 by x का ग्राफ देखा होगा ना, sine 1 by x का ग्राफ कैसा होता है, क्या करता है, ये -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है ना. It is oscillating very fast in -1 to 1. It is oscillating very fast in -1 to 1. Oscillating between -1 to 1. So this does not exist. Does not exist. While limit this will be equal to sine 1. ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और ये रिजल्ट क्या है, दिस रिजल्ट इज इफ एंड ओनली इफ that whenever a finite interval is given to you and function is continuous, so it is continuous, but limit on at 0 does not exist. ये क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? So using limit test, these two are different. So using limit test I can directly say from here that limit does not exist. किसी को डाउट है तो बताएं इसमें. कोई डाउट है इसमें sin 1 sin x के बारे में? ठीक है, क्योंकि वो इफ एंड इफ रिजल्ट है, तो हो गया पहला. चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद पार्टिसिपेट करें इसमें. व्हाट अबाउट दिस वन? सर ये जो क्वेश्चन आपने किया, हाँ 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 हाँ, तो सीक्वेंस देके भी कर सकते हो ना सर, मतलब बिल्कुल. हाँ हाँ, वो तो असल पिछले क्लास में करा दिया था सीक्वेंशियल अप्रोच. असल में एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर जिस चीज का आप ग्राफ या कंटिन्यूटी जान उसको डायरेक्ट अप्रोच करें. जहाँ थोड़ा सा टफ होता है, आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा ये चांसेस है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ना हो, तो वहां पे उसे इंश्योर करने के लिए हम सीक्वेंशियल अप्रोच यूज करें. यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो सीक्वेंशियल अप्रोच. आप ऐसे दो पॉइंट ले लो जिसमें ये जो डिफरेंस है ना, ये x1 और x2 बहुत क्लोज है, लेकिन ये जो वर्टिकल डिफरेंस उस पे फंक्शन का डिफरेंस एक 1 ले लो और एक यहाँ पे ये वाला 0 ले लो. देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि
अगर आप जैसे अब, हाँ चलो अच्छा सवाल पूछा। जैसे ये देखो ना, ये यहाँ पे पॉइंट ये 1 ले रहा है, ये जो भी पॉइंट होगा इस पे ये फंक्शन की वैल्यू 1 ले रहा है, और यहाँ पे 0 ले रहा है, तो ये दोनों पॉइंट लोगे ना, तो ये दोनों का डिफरेंस तो 0 जा रहा है, लेकिन फंक्शन का वर्टिकल डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 हो आप रहा है। ये जो कहते हो ना कि x1 इज क्लोज टू x2, बट if x1 माइनस if x2, तो ये दिख रहा है किस तरह के आपको पॉइंट लेने हैं। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो मैं बार बार आपसे, स्टार्टिंग के क्लास में मैंने वो चीज बता दी थी, बार बार हम उसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से आप क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि x1 x2 अगर क्लोज लो तो ये एक पे फंक्शन की वैल्यू 0 ले लो, और एक पे यहाँ पे 1 ले लो, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि हम इसको डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन से तो होगा ही, तो डेफिनेशन से देख लिया, ये लिमिट वाला कंडीशन भी देख लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से आप इसे देखो, ठीक है। और कुछ? ठीक है। एक मिनट जरा वेट करें। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से सोचा जाता है। ये अच्छा सवाल पूछा कि मतलब ये क्यों, उससे भी तो कर सकते हैं। तो इस तरह का, इसीलिए मैंने एक फंक्शन भी दिया था आपको, तो आप इस तरह ले सकते हो सीक्वेंस, जहाँ पे कि ये डिफरेंस तो 0 जा रहा हो, लेकिन ये fx1 माइनस fx2 बन जा रहा हो, तो वो यहाँ डायग्राम से क्लियर है, ठीक है। व्हाट अबाउट x sin 1 by x ऑन ओपन इंटरवल 0 1, इसके बारे में क्या कहेंगे? x sin 1 by x ऑन ओपन इंटरवल 0 1, देखो ये सब एंड पॉइंट ओपन इंटरवल वाले क्वेश्चन है, तो ओपन इंटरवल और फाइनाइट लेंथ का है, तो फाइनाइट लेंथ का अगर इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल है, फाइनाइट लेंथ इंटरवल, तो वहां पे ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होल्ड करता है। जबकि आप अगर इनफाइनाइट इंटरवल है तो वहां पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तब तो हम कहेंगे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, लेकिन नहीं किया तो कोई और टेस्ट यूज करेंगे। मैं एग्जांपल अभी दूंगा आंसर कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके बावजूद भी क्या है, फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो वो एग्जांपल अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ओपन इंटरवल देखा, आप लिमिट टेस्ट डायरेक्ट अप्लाई कर दो, दोनों एंड पॉइंट पे इसकी लिमिट चेक कर लो। अब आप बताओ कि लिमिट कितना होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x sin 1 by x क्या होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस x sin 1 by x। अच्छा, कौन सा मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं? आप ये रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं फिफ्थ वाला, ठीक है ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिमिट का। तो बताइए x sin 1 by x की लिमिट कितनी होगी? ये बताओ sin 1 by x का वैल्यू भले ऑक्सीलेट करे, लेकिन sin 1 by x का वैल्यू होगा कहां से कहां? -1 से 1 में होगा कि नहीं? दिस इज ऑक्सीलेटिंग बट टेकिंग वैल्यू बिटवीन -1 to 1। देखो इसका रेंज क्या है, -1 से 1। तो आप यहाँ 0 को क्या लिखते हो यहाँ पे, या तो चेक कर लो 0 प्लस एच साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, आपको 0 का राइट में चेक करना, और लिमिट क्या ले लो यहाँ पे, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0। तो ये तो क्या है, ये साइन 1 बाई एच की वैल्यू तो -1 से 1 में लाई करेगी। ये जो इतनी वैल्यू है ये कहां से कहां लाई करेगी, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 1 बाई एच इज लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस बीइंग अ फाइनाइट नंबर, और उसमें 0, जब h टेंडिंग टू 0 लोगे तो 0 इंटू फाइनाइट क्या कर देगा, 0 इंटू फाइनाइट नंबर इज इक्वल टू 0। तो लिमिट तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया। एंड व्हाट अबाउट दिस x sin 1 बाई x, यहाँ पे तो ये क्लियर कट, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, क्या हो जाएगा sin 1, sin 1 is again a number, so both are finite, ठीक है। hence by this test, फिफ्थ टेस्ट, ये रिजल्ट क्या पड़ा था, अगर ओपन इंटरवल ए बी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो और दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट अगर क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, तो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो वहां से चेक किया, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज fx is equal to x sin 1 by x is uniformly continuous on open interval 0 1। समझ में आया रिजल्ट कैसे यूज करना है? इसको चाहे तो आप जनरलाइज भी कर सकते हो, इसको चाहे तो जनरलाइज कर, देखो ये तो हमेशा यहाँ पे क्या था ना, sin 1 by x ऑक्सीलेटिंग है, तो ये होगा, और 0 का राइट में कंटिन्यूअस है ये,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी लिमिट जीरो के लेफ्ट, लेकिन ये जीरो जब जीरो की तरफ जा रहे हो ना तो वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीरो प्लस पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और वो रिजल्ट क्या कहता है कि एट बोथ एंड पॉइंट लिमिट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली. So using that result, now you can see here that not only in this, even you take x to the power alpha here and alpha is greater than 0. So this number is finite. This number is finite. कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लिया करें बीच में, कोई छोटा मोटा जो भी डाउट है पूछा करें, तब थोड़ा सा क्लास और इंटरेस्टिंग होती है, वरना मुझे ये नहीं चलता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. ये नंबर क्या है? फाइनाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑक्सीलेट कर रही है -1 से 1 के बीच. फाइनाइट, तो फाइनाइट इंटू जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट क्या हो गया? जीरो. ठीक है. What about x to the power alpha sin in general? What about this one? fx is equal to x to the power x square sin 1 by x on open interval 0 1. Is fx equal to x square sin 1 by x uniformly continuous? अब आप खुद आप लोग पार्टिसिपेट करें, क्या होगा ये, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा. क्या होगा सर? ये तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना सर, क्योंकि कौन सा यूनिफॉर्म, हाँ क्या कौन सा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा? जो आपने फंक्शन डिफाइन किया f of x इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 upon x. अच्छा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, हाँ ये क्या यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर. क्यों नहीं होगा? सर जैसे कोई दो फंक्शन मतलब सीक्वेंशियल अप्रोच ले ले तो हाँ हाँ. जैसे f of x1 आपका 1 upon n pi sin n pi स्क्वायर sin n pi, मतलब x इक्वल टू n pi ले लिया मैंने, मतलब 1 upon n pi सर. ठीक है सर. हाँ हाँ. तो यहाँ पर जो ये तो साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना सर, मतलब साइन n pi तो जीरो हो रहा है, तो वो जो फंक्शन x1 लिया था वो जीरो हो जाएगा आपका. देखो सीक्वेंशियल अप्रोच में क्या करते हैं ना, जब आपको दिखे कि x1 x, जैसे आपको ये समझ में आ रहा है कि x1 x2 आर क्लोज, बट इफ व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग fx1 minus fx2, it is not going to be less than some fixed quantity or it is going towards infinity, then in that case you can use sequential approach. But see, whenever open interval is given, there is we have if and only if result. This result, look at this result, this is a very good result for objective purpose. See, in the starting I already explained using the definition method. So using definition, so you whenever open interval is given and you are, since there is also time bound competition is there, so just try to look at this result. This result says that if your function is continuous and at the end point if limit exists finitely, then function is going to be uniformly continuous. So again just look here, this is an open interval, open finite interval. So from here you need to just check limit extending to 0 plus x square sin 1 by x and limit extending to 0 1 minus x square sin 1 by x. Just tell me what is this what is these two limits? क्या होगा? इसके लिमिट के बारे में क्या कहेंगे? बताइए, ये लिमिट क्या होगा? ये क्या होगा? फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट, और यहाँ पे क्या है? जीरो. जीरो इंटू फाइनाइट क्या हो जाएगा? जीरो. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 रख दो. पहले आप 1 एक्चुअली सॉल्व करने के लिए तो हम करेंगे इसको कि लिमिट आप 1 की जगह 1 माइनस एच पुट कर दो, तो ये 1 माइनस एच होल स्क्वायर जो पूरा सॉल्व करते हैं, साइन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एच लिख के, और लिमिट यहाँ ले लो एच टेंडिंग टू 0. लेकिन होगा क्या? दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू टेक वैल्यू बिटवीन 1 upon 1 minus h is less than equal to 1. If this is defined, because h is at h equal to 1, this is not defined and 1 is not in your domain, so clearly this function is defined, but it is going to be finite, and when you take h tending to 0 here, so yes, in this one h tending to 0, then we will get 1. So 1 into sine 1, so basically we are getting sine 1. So again sine 1 is a finite number, and what is going here? 0 into finite is going to be 0.
So since both limit are finite, so by applying fifth property, I can directly say that fx is equal to x square sine 1 by x is uniformly continuous on open interval 0 1. ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? रिजल्ट आप अप्लाई कैसे करोगे ये देखो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, मैं बता दूंगा। मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे रिजल्ट अप्लाई करना है। सर ठीक है। सर जो सेकंड वाला एक्स जब 1 माइनस में अप्रोच कर रहा है, ये थोड़ा समझा, ये थोड़ा समझा दीजिए। मतलब देखो एक्चुअली अगर सिर्फ आप इतने को ग्राफ देखो, इतने को, तो साइन 1/1 माइनस एच की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, साइन 1/x का ग्राफ, साइन 1/x एक्चुअल में जीरो के दोनों साइड ऑक्सीलेट करता है बहुत तेजी से। ये जीरो पे डिफाइंड नहीं होता, लेकिन ये ऑक्सीलेट करता है। लेकिन मुझे तो 0 से 1 में लेना है, तो मुझे तो ये वाला पोर्शन रिटेन करना है, ये वाला जो जीरो के राइट में हो, जो जीरो के राइट में हो, तो इस ग्राफ को लोगे। लेकिन ये वैल्यू जो है -1 से 1 में ऑक्सीलेट करें, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 है। तो ये वैल्यूज ले तो रहा है, ये फंक्शन की वैल्यूज तो फाइनाइट है ना, फंक्शन की वैल्यू तो फाइनाइट है। और उसमें अगर आप यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लोगे, तो ये वैल्यू फाइनाइट इंटू ये h टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू sin 1 हो गई, sin 1, सॉरी मैं फाइनाइट यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो क्लियर कट लिमिट ये हो गया ना। एक मिनट, फाइनाइट तो आएगा, लेकिन वो आई मीन ये इसकी वैल्यू बाउंड होगी, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं लिखे, वो चीज यहाँ वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये लिमिट अप्रोच जब 1h जब 0 को अप्रोच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो sin 1 बच गया यहाँ से, ये sin 1 हो गया। और यहाँ पे जब h 0 को जाएगा और ये 0 को जाएगा, तो sin 1 हो गया, तो sin 1 बच गया। यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लिखोगे ऐसे पूरा 0 + h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 + h, और लिमिट ले लो यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। लेकिन होगा क्या, ये जब h टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये नंबर होगा 0 इंटू, और इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, 0 इंटू फाइनाइट इज 0। 0 का इंफिनिटी के साथ वो अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा 0/0। लेकिन फाइनाइट क्वांटिटी जो चीजें डिफाइंड होती है, जब उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज 0 देता है। तो अब ये भी लिमिट फाइनाइट हो गया, ये भी लिमिट फाइनाइट हो गया। एंड यूज दिस प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहता है आपको? प्रॉपर्टी फिफ्थ कहता है कि इफ लिमिट इज फाइनाइट एट एंड पॉइंट्स, देन फंक्शन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही, x square sin 1/x. So in general, whenever, because see when, so in general if we have fx is equal to x to the power alpha sin 1 by say x to the power beta on open interval 0 1. So what we need to do here, if x to the power alpha sin 1 by x to the power beta, where alpha is greater than 0, then whatever be the value of beta, the function is going to be uniformly continuous. Fx is uniformly continuous on, then fx will be uniformly continuous. क्यों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हुआ, कोई बोलना चाहेगा यहाँ आप में से? जो आता है बोलो, आप मेरी क्लास में घबराया मत करो, जो भी बताऊंगा ना मैं, नहीं हुआ अगली बार डिस्कस करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मैं एमएससी के बच्चों को पढ़ा, मैं पास आउट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को बिल्कुल फ्रीडम है, आप पूछ सकते हैं सवाल। शान आलम, यस तारिक, यस सर। क्यों क्यों होना चाहिए ये तारिक? वो तो ये साइन 1/x टू द पावर बीटा, ये तो बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि ये Very good. -1 से लेके 1 से, और जो यहाँ पर x टू द पावर अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो 0 से जो लिमिट लेंगे वो वेरी गुड, 0 इंटू फाइनाइट क्या हो गया? 0 हो गया, सिंपल सी बात है। देखो ये तो जो है ना, ये जो है ना -1 लेस देन इक्वल टू बीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 में ही रहेगी इस इंटरवल पे। साइन 1 बाय x टू द पावर बीटा, तो ये रहेगा तो हमेशा फाइनाइट ना, वैल्यूज क्या ले रहा है? फाइनाइट। तो जब आप लिमिट लोगे,
अल्फा की वैल्यू अगर जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा ना कि जैसे आप जब लिमिट लोगे, अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे जब लिमिट लोगे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर अल्फा साइन 1 बाई x टू द पावर बीटा, तो आप इसको लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस h टू द पावर अल्फा इंटू साइन ऑफ 1 बाई x टू द पावर 0 प्लस h टू द पावर बीटा, ये आप लिखोगे। और जब इस पे लिमिट लोगे तो देखो ये तो चीज फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है, और ये h पे पावर अल्फा, और अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा ग्रेटर देन 0 होने के जैसे यहाँ पे h रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। सो 0 इंटू फाइनाइट क्या हो गया, 0। सो अगेन एट दिस एंड पॉइंट लिमिट इज 0, और 1 पे क्लियर कट इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 1। सो इट इज गोइंग टू बी लिमिट, सो लिमिट एट बोथ पॉइंट विल एग्जिस्ट, and this is the reason why function is uniformly continuous. So answer is yes. ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है सर, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। मैंने कौन सा यूज किया, प्रॉपर्टी फिफ्थ यूज किया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। सिमिलरली सेम प्रोसीजर you need to do for similarly try this. You can go to x cos 1 by x on open interval 0 1, first second x to the power alpha cos 1 by x to the power beta for alpha greater than 0 on 0 1. Same procedure, same answer in this. Again answer is yes, answer again in this is yes, because again 0 into cos 1 by x, again minus 1 is less than equal to cos 1 by x is less than equal to 1. Limit, however limit, but remember that limit extending to 0 sin 1 by x does not exist, limit extending to 0 cos 1 by x does not exist, okay. But here we have x into cos 1 by, so this one is being bounded between minus 1 to 1, and here you take this 0, so 0 into finite is again 0 again. So here if alpha is greater than 0, so again 0 into finite, so use this 0 into finite will be 0, and this is the reason why answer is yes, it will be uniformly continuous. समझ में आ गया? इस पॉइंट कर लेंगे आप लोग इसको? यस सर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ ग्राफ फंक्शन के, वैसे तो मुझे कराना चाहिए था स्टार्टिंग में वहीं से, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था कि थोड़ा सा मैं पीछे चीजें पूछता हूँ जिससे कि चलिए काम करें, आप लोग एक फंक्शन tan x sin x ये सब करा देता हूँ। अच्छा आपको पहले काउंटर एग्जांपल दे दूं ना, जो भी मैंने स्टेटमेंट बताया था उस पे काउंटर एग्जांपल दे दूं ताकि आपको याद रहेगा। Okay, what about next example? Fx equal to x sin x. In fact, let me start from some other example. What about fx equal to x on 0 to infinity? In fact, on minus infinity to infinity. Look here. Is fx equal to x uniformly continuous? Uniformly continuous?
लिमिट टेस्ट से क्या कहेंगे? लिमिट टेस्ट लिमिट टेस्ट आई मीन बाय प्रॉपर्टी 4। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से क्या कहेंगे? देखो ये पहले ओपन इंटरवल है, आप देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इंफिनिटी एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। लेकिन ये रिजल्ट क्या कहता है? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली देन वी कैन से दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। So by fifth property we cannot interpret, but if limit is infinite then we can't say, cannot say about uniform continuity using property fifth, as limit does not exist finitely, as limit does not exist finitely। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सो अप्लाई सम अदर टेस्ट, अप्लाई सम अदर टेस्ट। सो व्हाट इज thus use some other test। तो क्या टेस्ट यूज करेंगे? लेकिन अभी तो हमने बताया था कि आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के कि fx पहले लेक्चर में कि fx इक्वल टू x तो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होता है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं है तो इस मेथड से कुछ नहीं कह सकते, बस यहां से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको कोई और टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। लेकिन आपके पास एक और रिजल्ट है, या तो आप डेफिनेशन चला जाओ, लेकिन अगर डेफिनेशन नहीं यूज करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आइदर अप्लाई डेफिनेशन और यूज डेरिवेटिव टेस्ट। ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो या तो डेफिनेशन से तो दिख रहा है। व्हाट अबाउट एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स कितना होगा? 1। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 है सर 1 होगा। हाँ, सो मॉड ऑफ, सो क्लियरली दिस इज बाउंडेड। बाउंडेड तो अगर किसी डोमेन पे फंक्शन अगर बाउंडेड है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब आप रिजल्ट पे दोबारा जाओ। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो रिजल्ट आपको यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने ये कहा कि अगर इंटरवल फाइनाइट है, अगर डोमेन जो है फाइनाइट लेते इंटरवल है, और आप अगर दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करो और दोनों अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट आई मीन इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। लेकिन अगर अनबाउंडेड इंटरवल है और उसके एंड पॉइंट पे अगर लिमिट फाइनाइट मिल गया तब तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई मीन फंक्शन इवन मे बी even limit is not finite, then again it can be uniformly continuous, but you have to apply some other test, apply other test। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया, देखो ना यहाँ पे मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया। काउंटर एग्जांपल मैंने क्या दिया? इस एग्जांपल को देखो, प्रॉपर्टी फिफ्थ यहाँ पे अप्लाई करने की मैंने कोशिश की, लेकिन प्रॉपर्टी फिफ्थ कहती है कि एंड पॉइंट माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के एंड पॉइंट थे, दोनों पे लिमिटिंग केस लिया, दोनों पे लिमिट फाइनाइट नहीं है, तो यहां से मैं कुछ नहीं इंटरप्रेट कर सकता। कैन नॉट से अबाउट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ एज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो यूज सम अदर टेस्ट। तो डेरिवेटिव टेस्ट जब यूज किया तो वहां से क्या होगा? फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो इन दो स्टेटमेंट को समझ लो, ये दोनों स्टेटमेंट समझना जरूरी है। और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एट बोथ एंड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जब इसको करोगे तब समझ में आएगा। चलो कोई और फंक्शन लेते हैं। तो देखो आप धीमे धीमे सीखोगे, चीजें टफ नहीं, लेकिन कैसे रिजल्ट अप्लाई करना होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है। जब वो नहीं आता तो लगता है कि व्हाट अबाउट दिस एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x ऑन r, r मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहां बताएं क्या होगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहेंगे? कौन से टेस्ट से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है? देखो लिमिट चेक करो, लिमिट
सर प्रॉपर्टीज 4 और पहले ये बताओ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कितने लोग जानते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आप में से कितने लोग जानते हैं? tan इनवर्स एक्स का कोई मुझे ग्राफ बताएगा कैसा होगा? थोड़ा सा मैं ग्राफ आपका चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना समझ के पढ़ा ये चीजें। आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, बनाएं इसको, बना के मुझे बताएं क्या आएगा। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा? देखो एफ एक्स इक्वल टू, अगर आप tan x का ग्राफ बनाओ, tan x का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या होता है? अगर आप tan x का ग्राफ बनाओ तो tan 0 0 होता है, और tan पाई बाई टू क्या होता है? यहाँ पे ये क्या आता है, पाई बाई टू, और ये माइनस पाई बाई टू। सब पढ़े हो, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ चीजें आपको। पाई बाई टू माइनस, उसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है? ठीक, पीरियोडिसिटी कितनी होती है? पाई होती है। मैं tan x की बात कर रहा हूँ अभी, tan इनवर्स x की बात नहीं कर रहा। और फिर इसी पाई पाई लेंथ पे आप इस ग्राफ को रिपीट कर दो। पाई पाई लेंथ पे क्या करो, आप इस ग्राफ को रिपीट कर दो। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये लेंथ कितना होता है? पाई लेंथ होता है। पाई जीरो के ओरिजिन में, ओरिजिन के राइट में पाई बाई टू लेंथ और लेफ्ट में पाई बाई टू लेंथ। ठीक है ना, ये होता है। अब इसी ग्राफ को आप पेस्ट कर दो, फिर पाई बाई टू में पाई ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। और इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा? पाई। यहां से ग्राफ दोबारा ऐसे पास करेगा, ये हो गया, है ना। इसी तरह ग्राफ को आप एक्सटेंड करते चले जाओ, फिर ये दोबारा इस तरह आएगा। तो आप इसी तरह अपना प्लॉट करते चले जाओ। ये तो आप इसका होता है। हालांकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तो एक लाइन में चेक हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक पूछ रहा हूं। तो अब ये बताओ tan x में डोमेन कितना हो जाता है? डोमेन ऑफ tan x, tan x का डोमेन कितना होगा? माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू। कहाँ डिफाइन नहीं है ये? जहां पे ये वर्टिकल लाइंस बना पाई बाई टू पर, माइनस पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है। फिर उस पाई बाई टू में पाई लेंथ ऐड कर दो, 3 पाई बाई टू में डिफाइन नहीं है। तो पहले जो स्मॉलेस्ट पीरियोडिसिटी का लेंथ है ना, वो आप लिख लो। तो आप देख रहे हो पाई बाई टू के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं, पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं, 3 पाई बाई टू, 3 क्या है, ऑड है ना, तो ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं पाए, तो उनको छोड़कर डोमेन कितना होगा इसका? r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ये डोमेन हो गया। अगर मैं इस फंक्शन का रेंज पूछूं तो रेंज ऑफ tan x, रेंज क्या होता है? ग्राफ का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, डोमेन x एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है। रेंज क्या होता है? तो आप इसको जब प्रोजेक्ट करोगे तो ये तो पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है। सो रेंज ऑफ tan x इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और यू कैन से होल r। ठीक है, और फंक्शन की पीरियोडिसिटी कितनी है? पीरियोडिसिटी कितनी है? पाई। ठीक है, क्या ये फंक्शन बाउंडेड बिलो है? बाउंडेड बिलो के लिए क्या करते हैं, उसका रेंज को देखते हैं ना। इफ रेंज इज बाउंडेड देन फंक्शन इज बाउंडेड। सो दिस फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज देखो ना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ रहा है। सो इट इज नाइदर बाउंडेड एबव नॉर बाउंडेड बिलो। सो नॉट बाउंडेड, not bounded, even not bounded above, not bounded below, and all these are acting as asymptotes. All these are acting as asymptotes. तो थोड़ा सा बेसिक आप चीजें जो है ना रिवाइज कर लें सब फंक्शन। नाउ व्हाट अबाउट tan इनवर्स x? वैसे tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x के बारे में क्या कहेंगे? एनीवन? tan इनवर्स में क्या, x में क्या करेंगे? y इक्वल टू x में इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। सो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का ग्राफ जो होगा वो x इक्वल टू जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x पहले यहां से देखो,
माइनस ये जो -π/2 से π/2 है ना, इसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1/1 है फंक्शन, इसमें 1/1 तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x बेसिकली क्या देगा आपको? tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ? y इक्वल टू x में क्या ले लेते हैं? रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का ग्राफ? तो ये जो π/2 है ना, ये x और y को यहाँ पे देखो, π/2 इधर और -π/2। अच्छा, tan इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोट क्या करता है? ये tan इनवर्स x ये बेसिकली एंगल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप ये -π/2 ऐसे बना लो, ये π/2 बना लो, और y इक्वल टू x के अबाउट ये रिफ्लेक्शन जब लेंगे तो ये ग्राफ यूं आ जाएगा tan इनवर्स x का, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो लाइन होगा ना, ये पॉइंट कितना होगा? π/2, और ये पॉइंट जो होगा ये होगा -π/2। इनफैक्ट यू कैन से दैट y इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू -π/2 आर एसिम्प्टोट। सो तो देखो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये tan इनवर्स x है। सो इज tan इनवर्स x बाउंडेड? क्या tan इनवर्स x बाउंड है? इसका बाउंड कोई एक बाउंड बताओ। π/2 इसका बाउंड है, इनफैक्ट π/2 से ऊपर ये जितने रियल नंबर सब इसके बाउंड है। इसका रेंज क्या हो रहा है? -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल हुआ ना रेंज। तो इसके कितने, पहले ये बताओ इसके एसिम्प्टोट्स कितने हैं? एसिम्प्टोट्स अगर पूछूं तो एसिम्प्टोट्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के एसिम्प्टोट कौन कौन से है? y इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू -π/2। y इज इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2 क्या है? इसके एसिम्प्टोट्स हैं। चले, ये तो मैंने ग्राफ जस्ट एक रिवाइज करने के लिए। अब यहाँ से ये भी देख सकते हो, देखो ये ओपन इंटरवल था ना, ओपन इंटरवल, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स x कितना होगा? देखो tan इनवर्स x की अगर बात करें तो जब आप x इंफिनिटी को जा रहा है, जब x इंफिनिटी को आप अप्रोच कर रहे हो तो tan का ग्राफ किधर जा रहा है? π/2 को अप्रोच कर रहा है। सो इट इज π/2 एंड व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी tan इनवर्स x, it is approaching to -π/2. However, it is not attaining that value, but it is approaching to -π/2. ठीक है? So both are finite. At end point, both limit are finite, and hence uniformly by property fifth implies uniformly continuous. तो एक तो ये तरीका हो गया। थोड़ा सा ग्राफ में इसलिए बता दिया कि बेसिक चीज आपको रिकॉल हो जाएगी, मकसद ये था, वरना मुझे क्या जरूरत है, एक लाइन पे डायरेक्टली दिख रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये किधर जा रहा है? π/2, ये भी लिमिट फाइनाइट हो गया, ये भी लिमिट फाइनाइट हो गया। सो बाय फिफ्थ टेस्ट इट्स लिमिट विल एग्जिस्ट। डाउट तो नहीं है? यू कैन ऑल्सो चेक इट बाय डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट से भी आ जाएगा, और अप्लाई डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं बार बार डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन से सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है, ये तो बात है ना। अप्लाई डेरिवेटिव टेस्ट, व्हाट इज f डैश x? डेरिवेटिव कितना होगा इसका? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टेल मी वेदर दिस f डैश x की वैल्यू कितनी होगी? मॉड ऑफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? x की वैल्यू देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव क्या है? बाउंडेड। डेरिवेटिव बाउंडेड, हेंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब आप इस रिजल्ट पे आ जाओ। आपको क्या बताया था कि अगर किसी कोई फंक्शन, यहाँ पे देखो ये रिजल्ट क्या था? इफ डेरिवेटिव इज बाउंडेड, लुक एट दिस रिजल्ट, result third, if derivative, obviously if function is continuous and its derivative is bounded, if fx is continuous and derivative bounded and derivative of function is bounded, then that function will be uniformly continuous. तो आपको देखो दो मेथड से प्रूफ हो गया। एक तो हमने किससे प्रूफ कर दिया? एक तो आपका लिमिट टेस्ट, तो जब भी आपको ओपन इंटरवल दे रखा है ना, और अगर एग्जाम में आप बैठे हो तो आप तुरंत वो जो कंडीशन ओपन इंटरवल है उससे आप यूज करो, उससे क्वेश्चन चेक करना आसान होता है।
उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने प्रैक्टिस के लिए ये दिया कि ताकि थोड़ा सा आप समझ सको। चल दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्वेश्चन इस पे और कर लें। तो उम्मीद है कि ये वाला टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको अप्लाई कैसे करेंगे। कि अगर कभी भी ओपन इंटरवल तो आप लिमिट चेक करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं किसी क्लास में ये सब डेरिवेटिव वगैरह कराऊंगा। Is fx is equal to root x uniformly continuous on say some interval 0 to a where a belongs to r। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जब भी ओपन इंटरवल है आप हमेशा लिमिट चेक कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस रूट एक्स। क्या होगा ये दोनों लिमिट? x को यहाँ क्या लिखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 प्लस h क्या हो गया? 0। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट a minus h is equal to a. So both exist finitely, is it? Limit exist finitely. yes sir. Limit exist finitely. Hence, by property fifth, uniform continuous. Function is uniform continuous. So answer is yes. Answer is yes. Okay. What about question 1? Second. Is fx is equal to root x uniformly continuous on 0 to infinity? तो ये अनबाउंडेड इंटरवल है। क्या कहेंगे यहाँ पे? सर इनफॉर्म कंटिन्यू। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताएं? कोई बोलना चाहेगा कुछ? सर लिमिट ले लेंगे। अच्छा लिमिट ले लेंगे तो उससे क्या होगा? सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, ये तो 0 हो जाएगा। एंड Yes, लिमिट sir. एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x, सॉरी fx इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। सो फिफ्थ, तो सो वेदर फिफ्थ टेस्ट इज applicable or not here? सर नॉट होगा सर। Can't say using property fifth, because for that limit must be finite. So apply some other test. एक्चुअली बहुत से लोग ये इसको समझते हैं ना कि वो टेस्ट इंफिनिटी नहीं हो गया तो इफ एंड ओनली दिस दैट इज ऑन फाइनाइट लेंथ इंटरवल, हियर इट इज इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल। सो यू नीड टू अप्लाई सम अदर टेस्ट। कोई दूसरा टेस्ट बताएं? सो यू कैन राइट दिस 0 to infinity as open interval 0 to 1 union 1 to infinity. In fact, you can take here closed interval 1 to infinity, no problem. 0 to 1 union. तो बताओ इसको क्लोज्ड इंटरवल कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि अब डोमेन 1 पे भी तो डिफाइन है ना फंक्शन।
एक मिनट, तो इसको ऐसा काम करो। तो देखो चीजें कितनी आसान है, अगर आप थोड़ा सा प्लस टू की मैथ्स को इस बहाने रिकॉल भी आपका हो जा रहा है, और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, जो चीजें करा रहा हूँ आप सिर्फ सुनते चले जाओ, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना नोट्स को, इतना बहुत होता है, अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। सो तो अब यहाँ से इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ, अगर आप ये शो कर दो कि ओपन इंटरवल 0 1 पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और इस पे भी, तो उनके यूनियन पे, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है, उनके यूनियन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया, कैसे शो करेंगे? ओपन इंटरवल 0 पे कौन सा हो जाएगा, इस पे लिमिट टेस्ट वर्क कर जाएगा बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ, बताएं। यस सर। प्रॉपर्टी फिफ्थ वर्क, लिमिट एट 0 ऑफ रूट एक्स, वो भी 0 है, फाइनाइट हो गया, लिमिट एट 1 वो भी √1 हो गया, और इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा, ये ओपन इंटरवल तो है नहीं, और रूट एक्स बाउंडेड भी नहीं, तो ये फिफ्थ, इस वाले इंटरवल पे तो फिफ्थ टेस्ट नहीं लगेगा, इस पे डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखो, डेरिवेटिव टेस्ट, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, अगर बाउंडेड आपने दिखा दिया तो सो व्हाट इज एफ डैश एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, एंड 1/2 रूट एक्स ऑन 1 to infinity इज बाउंडेड, है कि नहीं बाउंडेड? देखो एफ डैश एक्स का मॉड कितना आ जाएगा भाई, ये कैसा फंक्शन है 1/2 रूट एक्स, इसका ग्राफ देखो 1/2 रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो इंटरवल के जहां पे भी ये 1 होगा, मान लो यहाँ 1 है और यहाँ पे इंफिनिटी है, ये 0 है, तो इस डोमेन में ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, तो इसका मिनिमम कहाँ मिलेगा, मिनिमम 1 पे मिलेगा और मैक्सिमम इंफिनिटी की तरफ मिलेगा, तो यहाँ पे ये फंक्शन तो 1 से 1 टू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी पे ये फंक्शन किधर जाएगा, 0 की तरफ ना, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, तो सॉरी 1/2 रूट एक्स, मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव की अगर बात करो, ये 1/2, मैं डेरिवेटिव की बाउंडेड की बात कर रहा हूँ, फंक्शन की नहीं, फंक्शन तो ये जा रहा है 0 टू, तो 1/2 रूट एक्स क्लियरली बाउंडेड, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, और इंफिनिटी, जब आप इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, बाउंडेड, and thus by derivative test, since function is bounded on this one, and already by fifth test limit exists finitely at both the, hence fx equal to root x is uniformly continuous, is uniformly continuous, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रूट एक्स को मुझे चेक करना था, इनफैक्ट ये हाफ से बाउंडेड होगा, आप चाहो तो इसको हाफ लिख लो, फंक्शन क्या है, व्हाट अबाउट साइन रूट एक्स, f of x is equal to sine of root x on 0 to infinity, इसके बारे में क्या कहेंगे, कौन कौन सा टेस्ट लग जाएगा आप बताएं खुद, राइट दिस 0 to infinity as 0 1 union 1 to infinity, और ये आपको मालूम है ना, इफ एनी फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल देन इट विल बी closed and compact, then it, any continuous function on compact domain is uniformly continuous, any continuous function on compact domain is uniformly continuous। अब ये सब प्रैक्टिस से ही आती है चीजें, देखिए रिजल्ट से तो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिया, रिजल्ट से मैंने इसलिए करा दिया था कि थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि अब एग्जाम है, कंपटीशन है, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, एग्जाम में टाइम लिमिट होता है, तो ये सब क्लासेस जो मैं वो एकेडमिक से हटके है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना जरूरी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था कुछ प्रूफ का, ताकि आप किस तरह से प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसा डोमेन है, कॉम्पैक्ट डोमेन है, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, साइन रूट एक्स इस पे, तो इस वाले पे ये रिजल्ट वर्क कर जाएगा डायरेक्टली, सो यहाँ तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया, व्हाट अबाउट दिस वन, ये डोमेन कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्ट है, पढ़ाया था टोपोलॉजी में, ठीक है।
now fx is equal to, for fx equal to sine of root x on 0 to infinity, what is f dash x? देखो ये ओपन इंटरवल होता तो हम लिमिट वाले टेस्ट की तरफ जाते, वो वैसा केस है नहीं। तो पहले आप देखो डेरिवेटिव तो बाउंडेड नहीं है कहीं, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? डेरिवेटिव बाउंडेड है, क्योंकि एफ डैश एक्स कितना होगा, साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो देखो कॉस या साइन जब भी होगा इनकी वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 में होती है, तो ये -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो बाउंडेड है, ये तो बाउंडेड है। व्हाट अबाउट 1/2 रूट एक्स, दिस इज अगेन बाउंडेड ऑन 0 टू इंफिनिटी, सो बाउंडेड, ये भी बाउंडेड हो गया और डिफाइंड भी है, ठीक है। सो ओवरऑल एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/√2, तो फंक्शन बाउंडेड हो गया, तो डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन क्या हो गया, दस मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ये क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस ऑफ रूट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 1/2 रूट एक्स, और इसकी क्या हो जाएगी, ये इज लेस देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि रूट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना 1/2 रूट एक्स, सॉरी इसको कह रहा हूँ रूट एक्स को, 1/√x को। अच्छा 1/√x का ग्राफ क्या होगा, 1/√x का 1/x का ग्राफ देखा होगा ना, 1/x का ग्राफ जैसा होगा, थोड़ा सा उससे कम स्टीपर होगा, 1/√x का ग्राफ हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, 1 पे क्या होगा, 1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इन्फिनिटी की तरफ जब जाओगे तो वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी, तो यही इसी वजह से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही 1/√x की वो 1 हो गई, तो 1/2 यहाँ से बच गया, और 1/√x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो इस वजह से यहाँ 1/2 आ गया, ठीक है। और बताएं आप लोग कुछ, एक्चुअली देखो मैंने स्टार्टिंग के क्लास में भले करा दिया था रिजल्ट, तो बहुत ज्यादा प्रूफ, क्योंकि नेट की क्लास है तो बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में बेसिक जैसे सीक्वेंशियल अप्रोच से कैसे डिस्कार्ड करेंगे, जहां डाउट का केस होगा कैसे वेरीफाई करेंगे, वो तो मैंने करा दिया। अब क्या है, मैं सिर्फ रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, ताकि आप रिजल्ट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना, जैसे आपको कोई रिजल्ट मालूम है तो कैसे आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो tan इनवर्स x भी देखिए हमने, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ये देख लिया, एक दो रिजल्ट इसमें और कर लेते हैं। तो व्हाट अबाउट fx इक्वल टू sin x स्क्वायर ऑन -∞ टू इंफिनिटी, ये करा दिया था क्या मैंने, is fx equal to sin x square on -∞ uniformly continuous, what about this one, कौन कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पे, कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, सीक्वेंशियल अप्रोच। सीक्वेंशियल अप्रोच, तो सीक्वेंशियल अप्रोच ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मतलब डाउट कहाँ से क्रिएट हुआ कि वेरीफाई करने की जरूरत पड़े, सर अगर 1/√n अगर दो सीक्वेंस लेते हैं हम लोग, नहीं ठीक है ठीक है, लेकिन पहले देखो ना, पहले आपको जब एंड पॉइंट दे रखा है ना, ओपन इंटरवल दे रखा है, सबसे पहले लिमिट देखा करो, कहीं ऐसा नहीं लिमिट फाइनाइट है, नहीं। लेकिन यहाँ तो लिमिट फाइनाइट आ रही है, फिर क्या करेंगे इसके लिए, इस रिजल्ट से देखो एक चीज हो गया कि यहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे लिमिट इसकी क्या आएगी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की, होगी तो -1 से 1 के बीच में, लेकिन क्या कहेंगे इसको कि लिमिट, एक्चुअली दिस क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर is equivalent to solving the question limit extending to 0. You can put here x as 1 upon y. So x tending to infinity means
implies y will tends to 0. So you can put here sine of x square limit extending to 0, sine of 1 upon y square, and here you can put this one in terms of लिमिट y टेंडिंग टू 0. अब ये बताओ sin 1 by y square y टेंडिंग टू 0 कितना होता है? It's oscillating around 0, so does not exist. Does not exist. ठीक है, does not exist. So you cannot use that test. Limit extending to infinity sin x square, it's bounded but limit will not exist. फंक्शन तो बाउंडेड है क्योंकि वैल्यूज तो ये -1 से 1 के बीच में लेगा, लेकिन जब इसको देखो इसमें कन्वर्ट करोगे ना तो क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो आप सो फिफ्थ टेस्ट नॉट वैलिड, नॉट अप्लीकेबल. नाउ एनी अदर टेस्ट? यस. देखो सारी चीजों को एनालाइज करो ना, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा. डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाते. मैंने ये बताया देखो, अगर एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता तो ठीक है, तो इन्फिनिटी पे चेक करना था, एंड पॉइंट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एटलीस्ट एक पे चेक किया और लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो वहां से हम फिफ्थ टेस्ट से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजल्ट ये कहता है कि लिमिट अगर एंड पॉइंट पे फाइनाइट हो तब जो है, तब हम ये कहते हैं कि आई मीन function will be uniformly continuous. So apply some other test. What about derivative test? Derivative test के बारे में क्या कहोगे? Is it valid? f dash x निकालो. f dash x कितना है? sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? cos of x स्क्वायर और 2x. हाँ, लेकिन x देखो कहां से, x इंफिनिटी को जा रहा है. So when x tends to infinity, yes, f dash x will not be bounded. So again this test fails. So derivative test not applicable. देखो आंसर डायरेक्ट ये नहीं जाते किस पे, कोई टेस्ट क्यों फेल कर रहा है. डेरिवेटिव टेस्ट नॉट अप्लीकेबल हियर. ठीक है ना. तो अब क्या बच गया? डेरिवेटिव टेस्ट अप्लीकेबल नहीं हुआ आपका, तो क्या करेंगे? सीक्वेंशियल अप्रोच. सीक्वेंशियल अप्रोच, तो सीक्वेंशियल अप्रोच में आप x और y, x1 x2 दो क्लोज नंबर लो सीक्वेंस में, such that x1 is close to x2 but the values at them cannot be less than a fixed constant. तो बताओ, एक तो रूट के अंदर एक कैसा सीक्वेंस लें? साइन किस पे वैल्यू आसान? 1 by root n pi पे हो जाएगी सर, 0 हो जाएगा वैल्यू, n pi पे 1 upon टाइप पर ले लेंगे. वेरी गुड. सो choose sequences an bn such that an is close to bn but f of an minus f of bn, this estimate 0 आ जाना चाहिए. is not tending to 0. 0 to discard. है yes ना? sir, to discard. This result is always used to discard. Remember, this Sir. result is always used to discard. This is not to prove, to discard uniform continuity. So आप ऐसा कोई सीक्वेंस बताओ, कैसे चूज करोगे? कोई सीक्वेंस बताओ. सर 1 by root 2n pi टाइप का ले लें सर. हाँ, रूट के अंदर है ना. ठीक है, रूट के अंदर है, एक्स स्क्वायर है, Yes, तो sir. रूट में Root के और अंदर पाई बाई लेंगे 2 तो के y मल्टीपल पे तो सर 0 हो जाएगा. sin ठीक है. साइन एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, x1 x2 जैसे क्लोज जाओगे, x में स्क्वायर तो y की सिमेट्रिक होगा. तो इसमें क्या होगा कि ये -1 ये 1, तो यहाँ जब आप x1 x2 क्लोज जाओगे ना, जैसे ये है x1 और x2 क्लोज ले लो, ऐसे लो कि x1 x2 क्लोज है, लेकिन इस पे ये जो डिफरेंस है और यहाँ पॉइंट पे ये जो डिफरेंस है, ये वर्टिकल डिफरेंस 1 से कम ना हो पाए. ऐसे दो पॉइंट चूज करो कि x1 इज क्लोज टू, आई मीन an इज क्लोज टू bn. एक ये पॉइंट ले लो an, ये पॉइंट ले लो an और इस पॉइंट पे ले लो bn. तो कैसे चूज करोगे? हाँ, ये जरा समझने की कोशिश करो. an को हम क्या ले लें? an को
देखो एक तो रूट के अंदर है 1 by और यस सर, तो रूट 1/√2 साइन 2 n पाई pi टाइम कितना हो रहा है, मतलब 0। रूट n हाँ तो आप ये 0 हो ले लो, जाएगा। an इज इक्वल टू रूट 2n पाई, और bn कितना ले लो, अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n pi by है ना। 2। तो अब ये बताओ कि जब साइन ऑफ an कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ साइन ऑफ an कितना होगा, 0 चला जाएगा ये तो। साइन ऑफ an, साइन ऑफ an स्क्वायर है ना, स्क्वायर साइन हो जाएगा, ऑफ 2n pi हो जाएगा। साइन ऑफ 2n पाई, और 2 पाई के मल्टीपल पे साइन क्या होता है, 0। साइन ऑफ bn कितना होगा, 0 हो जाएगा, हाँ 2 नहीं 1 हो 2 जाएगा। वाई के मल्टीपल पे 1 हो जाएगा ना, साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई का मल्टीप्लिसिटी इसकी पीरियोडिसिटी होती है ना t, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2, जी जी, ये सर 1 साइन पाई बाई 2, तो ये 1 हो गया। 1 हो जाएगा ना। तो यहां से एक चीज तो दिख रहा है कि f ऑफ an माइनस f ऑफ bn, ये जो इज इक्वल डिफरेंस टू 1 आएगा, आ जाएगा। हाँ ये 0 माइनस 1 का मॉड कितना हो गया, मॉड ऑफ 0 माइनस 1, ये तो 1 आ गया। लेकिन आपको उससे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि an माइनस bn इज टेंडिंग टू 0, when n is large then an minus bn is tending to 0। तो ये रेशनलाइज करके प्रूफ कर लोगे, इस तरह का तो कई बार आप रियल में किया होगा ना, इसे रेशनलाइज कर लो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, कंजुगेट कह रहा हूं, रेशनलाइज कर लो। आपको क्या शो करना, पहले आपको शो करना है कि 2n पाई माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये जो डिफरेंस है ये 0 जा रहा है। तो देखो 2 सॉरी क्या लिया था मैंने, रूट 2n पाई ना, रूट 2n पाई प्लस रूट ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो इसके जरा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, आई मीन रेशनलाइज करो, मैं कंजुगेट बार बार रेशनलाइज करो, कितना आएगा, ये जो है ना, सर n नीचे पहुंच जाएगा ना इसमें। हाँ n नीचे आ जाएगा जब रेशनलाइज करोगे आप, ये जो 2n पाई है, 2n पाई रूट ऑफ 2n पाई माइनस n नीचे आ जाएगा। 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये जो रूट में है ना, इसमें इस फैक्टर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, मैं करके दिखा देता हूँ एक फैक्टर, और यहाँ पे लिख दो 2n पाई प्लस रूट ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक लिखा है मैंने, देखते रहना कैलकुलेशन। तो ऊपर a माइनस बी a प्लस बी लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये 2n पाई पाई बाई 2 बच जाएगा। हाँ प्लस सॉरी माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा रूट ऑफ 2n पाई प्लस रूट ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये क्या आ जाएगा 0। So x1 and x2, an and bn are close. This implies an is close to bn, but at those points this estimate f of an minus f of bn is not tending to 0, is not tending to 0। तो ये वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं कि मतलब क्यों नहीं ऐसा हो रहा। सर एक हाँ क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, जो इंटरवल जो दे रखा है सर, जैसे हमने सीक्वेंस लिए जो अप्रोच कर रहे हैं 0 पे, हाँ हाँ एक 1 पे अप्रोच कर रहा है, एक 0 पे अप्रोच कर रहा है, बट सर जो इंटरवल दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हाँ हाँ सर इसमें 0 तो बाद में आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे ये जीरो कहाँ पे, मैं पॉइंट आपका नहीं समझा, फिर से बोले क्या कहना चाह रहे हैं। सर जो 0 पॉइंट है ना उसके अंदर ही है ना इस इंटरवल के। हाँ हाँ 0 अंदर है, हाँ ठीक है। तो सर ये पूरे के लिए वैलिड कैसे हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं सर। मतलब पूरे के लिए वैलिड कैसे हो जाएगा, मतलब पूरे इंटरवल के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ हाँ सर इनका कहने का मतलब है कि हमने जो इंटरवल पे चेक किया है वो पॉजिटिव पे चेक किया है, हमने निगेटिव सबमिट में उसमें नहीं लिया है। नहीं तो कहीं डेफिनेशन ये नहीं कहता ना, डेफिनेशन कहता है कि कोई भी x1 x2 आर्बिट्री पॉइंट है, हर जगह होल्ड करना चाहिए। अगर डिस्कार्ड करने के लिए आपने कहीं भी x1 x2 के क्लोज लिया, लेकिन वह उस पॉइंट पे अगर fx1 fx2 के क्लोज नहीं तो डिस्कार्ड हो गया, तो वो तो हमारा पर्पस हो गया ना। अच्छा ये बताओ साइन एक्स स्क्वायर का डोमेन कितना होता है, यस डोमेन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर
आर होगा, माइनस डाउट में तो नहीं है ना? हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड है। यस सर। कहीं ऐसा कोई डाउट जी पॉइंट बस है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है? सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो फंक्शन डोमेन कितना हो गया? आर हो गया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, रिजल्ट पढ़ना एक अलग चीज है। अब स्टार्टिंग के 2 क्लास में क्या किया मैंने कि क्वेश्चन नहीं कराया, तो अब ये होता है ना कि नेट के लिए पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट और वो सब बाद में आता है। पहले थोड़ा सा चीजें जब समझ लेते हैं उसके बाद इन चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले से ही ऐसा नहीं करते। तो मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट और लूंगा। क्या टाइम हो रहा है? अच्छा 10 बज गया। 10 से 15 मिनट और लूंगा। अल्टरनेट डे क्लास करते हैं। मैं भी जिस दिन फ्री होगा तो एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स को या जो भी ज्वाइन करना चाहे तो थोड़ा सा उस बहाने, क्योंकि काफी दिन मुझे भी हो गया, थोड़ा सा चले उस बहाने मैं भी कुछ पढ़ लूंगा और कुछ आप लोगों को भी सिखा। डिस्कशन से होती है चीजें। और देखो, कुछ ना करने से कुछ बेहतर है। एक बात बताओ, नेट का एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है और एमएससी अपियरिंग में अगर कोई थोड़ा सा भी सिंसियर है तो आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा इस पर आप लोग सोचेंगे। व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1/x? इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? रेंज क्या होगा? इसके कितने एसिम्प्टोट्स होंगे? बाउंडेड है ये फंक्शन? पीरियोडिक है? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और एफ मिनिमम कितना होगा? और इसके रूट है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वो डोमेन क्या होगा? कोई बोलना चाहेगा इस फंक्शन का? ग्राफ पढ़ा है इस फंक्शन का? ये तो बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है। इस फंक्शन में y इक्वल टू एक्स इसका एसिम्प्टोट होता है। y इज इक्वल टू एक्स जो होता है इसका एसिम्प्टोट होता है। ठीक है, और मैं प्रूफ करूंगा। आई मीन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर यूज करो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अरिथमेटिक मीन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो वहां से मैं क्या कह सकता हूँ? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये जो नंबर है x और 1/x, दो नंबर है a प्लस b बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? x इंटू 1/x टू द पावर हाफ। ठीक है, x नॉन जीरो है, ऑब्वियसली है। अच्छा, इसका पहले डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? दिस इज नॉट डिफाइंड ओनली एट जीरो, सो डोमेन इज r माइनस जीरो, आर माइनस। है ना? तो जीरो तो है नहीं, तो ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिल गया? x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। सो इफ x इज ग्रेटर देन 0, if x is greater than 0, then x plus 1/x is greater than equal to 2। ठीक है, तो ग्राफ जब भी आएगा इसका 2 से ऊपर ही होगा। तो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे x क्या जाना चाहिए? इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे fx किधर जाना चाहिए? इंफिनिटी जाएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी fx कितना होगा? ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा माइनस इंफिनिटी, तो ये भी माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये तो दो चीजें यहाँ से मिली। जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। और अगर x निगेटिव है तो क्या होगा? जैसे पुट करके देखो ना, x की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करे तो x प्लस 1/x कितना होगा? 2। और कोई वैल्यू लो, पुट x इक्वल टू 0.5,
तो कितना हो जाएगा ये 0.5 + 2, 2.5 हो गया फंक्शन की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कभी भी अगर x पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ी ही होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी, और अगर x नेगेटिव है तो 2 या 2 से छोटी होगी। एंड इफ x इज लेस देन 0 सो x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो ये कभी भी वैल्यूज -2 से 2 के बीच में नहीं लेता, या तो 2 से बड़ी वैल्यूज लेगा या -2 से छोटी। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे ना, तो मैं ग्राफ के क्लास में डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन ये बेसिकली इस तरह ग्राफ आता है। जो ग्राफ होगा फंक्शन का ये इस तरह आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होती है, ये जो मिनिमम होगी, ये जो होगा ये 2 होगा। 2 किस पॉइंट पे मिलेगा? 2 कहाँ मिला था? देखो 2 कहाँ मिला था? x = 1 पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कहीं 1 होगा और ये 2 होगा। ये ओरिजिन है 0। उसी तरह -1 पे क्या मिलेगा? -2। -1 पे क्या मिलेगा? इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये लाइन लिख दिया -2, ठीक है ना, -2 होगा। या आप x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो, ठीक है, y एक्सिस मान लो। तो अब मैं रेंज बता सकते हैं आप यहाँ से क्या होगा? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ डोमेन क्या होता है। ग्राफ का प्रोजेक्शन कहाँ पे? x एक्सिस पे। तो ग्राफ को अगर प्रोजेक्ट करो, देखो इस ग्राफ को यहाँ प्रोजेक्ट करो तो x एक्सिस पे 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 के इधर है तो 0 के आई मीन एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन 0 के राइट और 0 के लेफ्ट में, और 0 के प्रोजेक्ट जब आप इसको ग्राफ का प्रोजेक्शन लोगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन लोगे इस पे, तो क्या हो रहा है? ये पूरा देखो 0 to ∞ जा रहा है। तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं? इधर 0 to ∞, इधर -∞ to 0 एक्सेप्ट 0, तो डोमेन हो गया आपका R to ∞, R - 0। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज के y एक्सिस पे देते हैं, ग्राफ को आप प्रोजेक्ट कर दो y एक्सिस पे, मतलब जो वैल्यूज ले रहा है उन्हीं का कलेक्शन, फंक्शन जो वैल्यूज अटेन कर रहा है उनका कलेक्शन होता है। तो फंक्शन जो कौन कौन से वैल्यूज ले रहा है बताओ? फॉर दिस प्रोजेक्ट इट्स ग्राफ ऑन y एक्सिस। रेंज के लिए क्या करते हैं? y एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो जब y एक्सिस प्रोजेक्ट करो, देखो 2 से लेके इन्फिनिटी, ये 2 से लेके इन्फिनिटी, जब इस ग्राफ को आप प्रोजेक्ट करोगे y एक्सिस पे, तो 2 क्या जा रहा है? 2 से लेके इन्फिनिटी और -2 से लेके -∞। तो मैं रेंज को क्या लिखूंगा? एनीवन? रेंज को क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल हाँ वेरी गुड, -2। पता है। देखिए मैं ये सब चीजें चेक कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाना क्या है। थोड़ा सा मैं चीजें रिकॉल कर रहा हूँ, नहीं भी पढ़ा तो मैं बेसिक पे आके पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं आप लोगों का थोड़ा इस बहाने बेसिक रिकॉल हो जाएगा, और ये हमेशा जरूरत पड़ती है। सो -∞ -2 यूनियन 2 to ∞, ठीक है। सर। कौन कौन से लाइन इसके एसिम्प्टोट की होंगे? इसके कितने एसिम्प्टोट्स होंगे? कोई बता सकता है इसके कितने एसिम्प्टोट्स होंगे? ग्राफ बना हुआ है, कितने एसिम्प्टोट्स होंगे? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स क्या होता है? जो लाइन को, वो लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करे। तो देखो y = x एक लाइन है, एंड ऑल्सो लाइन शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व। और एक ये वाला लाइन भी तो है y = x, सॉरी y एक्सिस, y एक्सिस एंड y = x। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 2 होगा। कौन कौन से? x = 0 एंड y = x, ये इसके दो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। ये फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए क्या देखते हैं? रेंज। क्या रेंज बाउंडेड है? नहीं। सो आंसर इज नो। पीरियोडिसिटी है, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? वो मिनिमम लेंथ बताओ जिसमें फंक्शन अपना नेचर रिपीट करे। नहीं होगा। तो ग्राफ तो रिपीट हो नहीं रहा, सो फंक्शन नहीं। इस फंक्शन पीरियोडिक? नो। व्हाट अबाउट एफ मैक्सिमम? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम मिनिमम अभी मैंने कुछ दिन पहले लेक्चर पोस्ट किया था। मैक्सिमम मिनिमम व्हेनेवर एग्जिस्ट दे विल बी मेंबर ऑफ द सेट। तो रेंज सेट में देखते हैं ना, रेंज सेट में मैक्सिमम क्या है? इन्फिनिटी इज नॉट अ मेंबर ऑफ रियल लाइन, so we will say that maximum does not exist, does not exist. And what about f minimum? F minimum -∞, but -∞ is not part of R, so again answer is does not exist. What about root? इस फंक्शन के क्या रूट है? रूट के लिए क्या चेक करते हैं? फंक्शन कहाँ कट करना चाहिए? एक्स एक्सिस को। क्या एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है कहीं? देखो ग्राफ क्या है,
ये तो 2 से ऊपर रह रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, सो नो रूट्स, नो रूट्स। किसी को डाउट है इस फंक्शन में? ग्राफ में इसका अलग से डिस्कशन कराऊंगा। एक्चुअली देखो फंक्शन का ग्राफ वगैरह आपको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रियल के इससे सॉल्व हो जाते हैं। जो बेसिक प्लस 2 के जो कैलकुलस है ना, ये आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो मैं करूंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करा दूं एक दो लेक्चर में, तो उसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ, बेसिक ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो रिकॉल करा देता हूँ। और उसके बाद फंक्शन की पीरियोडिसिटी वगैरह, लिमिट, कंटिन्यूटी, कैसे ग्राफिकल अप्रोच या रेशनल फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं, कैसे उन्हें प्लॉट करेंगे। तो ये चीजें जब क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको चीजें और आसान लगेगी। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ वगैरह आप मालूम होने, उससे क्या होता है ना, आपका टाइम बचता है शॉर्ट में, उससे बहुत आसानी हो जाती है। तो एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके आएंगे, फिर इसको कल परसों अल्टरनेट में क्लास लूंगा, जब भी मुझे फ्री होगा। एमएससी फाइनल डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए, एमएससी फाइनल के लिए मैं अल्टरनेट क्लासेस, या जिस दिन भी फ्री हो गया उस दिन ले लूंगा। कभी कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश करूंगा कि एक ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे क्लास हम लोग करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैं आपको कुछ एक तो ग्राफ दे देता हूं, थोड़ा सा आप लोग इसको ट्राई करेंगे। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal, first y is equal to 1 by fractional x. This denote fractional part of x. ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड y is equal to e to the power minus mod x. Third y is equal to sine of mod x. Fourth mod y is equal to sin x. Fifth, ये थोड़ा ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा इन चीजों को, फिर मैं डिस्कस करूंगा। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ले सकते हो आप। y is equal to mod of tan inverse x. Y is equal to modulus of tan inverse x. And solve this one. Fractional x is equal to x square minus 4. फ्रैक्शनल x है ना, x के क्या क्या वैल्यूज होंगे, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड, सॉल्व अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x। फोर्थ, इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डोमेन, कोडोमेन, ये सब चीजें रिवाइज करेंगे। मैं बेसिक फंक्शन के ग्राफ यहाँ पे एक और लिख लो, y is equal to log of mod x, y is equal to mod of log x, mod y is equal to log x, और उसी तरह ठीक है mod y equal to sin x वगैरह दे दिए। तो ये इतना आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज से क्या होगा, ये कि जो बेसिक है ना फंक्शन वगैरह का, वो रिकॉल हो जाएगा।
किसी कोई डाउट है कोई और? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक से आ जाऊंगा, दोबारा मैं समझाने लगूंगा। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा, वैसे तो मुझे कायदे से स्टार्टिंग तो वहीं से करनी चाहिए थी, फंक्शन और उनका ग्राफ। लेकिन जब जरूरत, अब जैसे यहाँ पड़ी यूनिफॉर्म कंटिन्यू ने देखा, 2 क्लास में और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का लूंगा अल्टरनेट करके, जिसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि उन पॉइंट्स को और अच्छा कर ले, ताकि अगर सवाल इस पे आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं ये सब बेसिक फंक्शन, ये थोड़ा सा इनइक्वलिटी कैसे करते हैं ये सब, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या होगा ना, इसमें यूज होगा। जैसे अब ये यहाँ दे दिया, अगर आपसे इसमें देखो सवाल क्या बन सकता है, अगर फ्रेम करना चाहिए सवाल तो यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है फ्रेम। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, ये बेसिक फंक्शन की ग्राफ में क्यों बता रहा हूं, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि is fx equal to 1 upon fractional x uniformly continuous on open interval 0 1। अब अगर आपको ग्राफ मालूम है तो ऐसा नहीं लिमिट वगैरह के क्वेश्चन आपको फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, बहुत से आंसर मिल जाते हैं। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कंप्लीट होने के बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म को मैं डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से बच्चे एमएससी के ग्राफ वगैरह अक्सर छोड़ दिया जाता है कि +2 में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है नहीं पढ़ा होगा या टच में ना हो, क्योंकि बिना इसके आप कभी भी कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आपको इस पे कमांड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के 2 लेक्चर लेने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि उसका रोल्स और लैग्रेंजेस के क्वेश्चंस में होते हैं, रोल्स थ्योरम वगैरह में होते हैं, जो रूट्स वगैरह के टेस्ट पे आते हैं वो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ग्राफ्स मालूम है ना फंक्शन के, रेशनल फंक्शन के ग्राफ कैसे, जैसे रेशनल फंक्शन पे तो मेरा एक लेक्चर भी रिकॉर्डेड, जैसे आपको ये लिख दिया fx इक्वल टू 1/1 + x², इसका ग्राफ क्या होगा, या 10th ये दे दिया fx इज इक्वल टू 1/1 + x + x²। ऐसे फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर के रूट्स ना हो, या इस तरह के fx इज इक्वल टू 1/x - 1 x - 2, इसका ग्राफ क्या होगा। तो ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है कि 10 बजे तक मैं क्लास लूंगा, तो ऑलरेडी लेट हो रहा है। कल छोड़ के परसों फिर मैं क्लास लूंगा। एमएससी के बच्चे, जो एमएससी के स्टूडेंट से, देखिए आप लोग ठीक है क्लास की चीजें पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये चीजें जो कि आपको हमेशा काम आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि अल्टरनेट ये 1.5 घंटे में आपको कोई नुकसान है, ठीक है। खुद से जो लोग इवन पढ़ भी चुके हैं ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आप ही का रिवीजन होगा। मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो लोगों ने तैयारी कर ली है या जिस कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं या जो भी है, तो वो लोग क्या काम करें कि जब मैं क्वेश्चन दूं तो इसमें पार्टिसिपेट करें, तो उनका रिवाइज होगा। क्योंकि कंपटीशन है ना, जहां भी 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा आया तो आप मेरिट में जंप ले लोगे। और ये सब आपको कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में ये बेसिक है, वाइवा में चीजें पूछे जाते हैं। तो जो एकेडमिक है क्लास का वो अलग है, यहाँ हम लोग दोनों यूज करेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म है और बेसिक, पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो कोई पूछ सकता है। मैं क्लास यहीं पेंट करता हूँ फिर, ठीक है। आप लोग करके आएंगे। अब अभी मुझे 2 क्लास और चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं करा है, स्टार्टिंग क्लास में मैंने सिर्फ थ्योरी कराई है, ठीक है। मैं लेक्चर एंड करता हूँ।